السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ ابراہیم کی دعاؤں کو گرامیٹکلی انالائز کر رہے تھے۔ یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھیں۔ یہ وہ دعا تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو ایک میدان میں، ایک بغیر کھیتی والے میدان میں چھوڑ آئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ دعا ہم نے کل گرامیٹکلی اینالائز کی تھی، اور اس میں پھر یہ بات تھی کہ کیوں چھوڑائے تھے، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کی طرف یا ان کی طرف جو ہے وہ لوگوں کے دل بھی مائل کرتے ہیں کہ لوگ ادھر اس طرف جانے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں رزق دے، یعنی کہ پھلوں میں سے ان کو رزق دے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر کریں۔ تو یہ الحمدللہ ہم کل گرامیٹکلی انالائز کر چکے ہیں، اور اس کے ترجمہ تفسیر پہ بھی بات کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی یہ دعا قبول ہوئی، اور مکہ میں لوگوں کے جو دل ہے وہ آج بھی مکہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، مسلمانوں کے۔ ورزقہم، اور وہاں پر چونکہ نہ پانی ہے زمین کے نیچے، اور نہ ہی زمین اتنی ہموار ہے، اور نہ زمین قابل کاشت ہے، تو وہاں اس کے باوجود وہاں ہر طرح کے پھل، ہر طرح کا جو پھل ہے وہ ہمیں مکہ مکرمہ میں نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دعا کی قبولیت کا یہ نتیجہ ہے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ اس گھر کو امن والا گھر بنا دے، یعنی کہ مکہ مکرمہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کو امن والا گھر بنایا ہوا ہے۔ لوگوں کے دل مائل کرنے کا کہا، تو وہ بھی دل بھی مائل ہیں لوگوں کے، اور رزق کی فراوانی کی بات ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی پورا کر دیا۔ اور یہ سب کام کرنے کا مقصد یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں، یہ اس لیے کیا گیا۔ آج جو دعا گرامیٹکلی انالائز کریں گے وہ سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 38 ہے۔ اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہیں، ان سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یا حرف ندا محذوف ہے، ایز آن، جیسے ہم نے پہلے سب دعاؤں میں دیکھا، جو کہ ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ادعو فعل انا فاعل، اور ربنا مرکب اضافی یہ مفعول بن کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر ندا ہو جائے گی۔ جواب ندا شروع ہو رہا ہے انا کافی، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ انا کا ایک اسم ہوتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، اور انا کی ایک خبر ہوتی ہے جو مرفوع ہوتی ہے۔ تو انا کا اسم کا ضمیر کی فارم میں آیا ہوا ہے، جو کہ منصوب اٹیچ ضمیر جب بھی آتی ہے تو یہ منصوب ہی ہوتی ہے۔ اس انا کا، ٹھیک ہے، منصوب اور مجرور ہوتی ہیں، تو یہاں پر منصوب چاہیے، تو اس لیے ہم اس کو یہاں پر منصوب ڈکلیئر کریں گے۔ انا کا جو اسم ہے وہ کا ضمیر ہے، انا کی خبر ایک جملہ فعلیہ کی صورت میں ہے، جو کہ ہے تعلمو، ٹھیک ہے، تعلمو، آپ جانتے ہیں۔ تعلمو عین لام میم حروف مادہ باب سین سے ہے، اور یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد اور مذکر اور حاضر کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ تعلمو فعل با فاعل انت، اور ما اس میں موصول ہے۔ ما اس میں موصول کبھی بھی اکیلا نہیں آئے گا، بلکہ وہ صلۃ الموصول ساتھ لائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں موصول ابہام دور کرنے کے لیے، اس میں موصول میں ابہام ہوتا ہے، اور ابہام کو دور کرنے کے لیے صلۃ الموصول لایا جاتا ہے۔ تو نخفی جملہ فعلیہ صلۃ الموصول کی فارم میں آیا ہوا ہے۔ خاف یا حروف مادہ باب افعال سے ہے، تو
यहाँ पर ये मुतकल्लिम जमा का सीगा है, फेल बा फाइल नहनु जुमला फेलिया होकर ये माँ इसमें मौसूल के लिए सिलातुल मौसूल हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखें तो आगे हमें वाव आतिफा नजर आ रहा है, तो नुक्फी वाले जुमला फेलिया को हम मातूफ अलैह बना देंगे, और माँ नुक्फी वाले पार्ट को, ठीक है, मातूफ अलैह, और माँ नुअलिनु, ठीक है, इसको हम बना देंगे मातूफ। तो ये भी माँ जो है ये इसमें मौसूल है, और इसमें मौसूल, जैसे मैंने पहले बात की कि इसमें मौसूल इबहाम रखता है, तो इबहाम को दूर करने के लिए सिलातुल मौसूल लाया जाता है। तो यहाँ पर सिलातुल मौसूल जो है वो भी एक जुमला फेलिया है। आइन लाम नून हरूफ मादा बाबे इफ़आल से है, मुतकल्लिम जमा का सीगा है, लुअनिनु, ठीक है, मुतकल्लिम जमा का सीगा है यहाँ पर भी। तो फेल बा फाइल यानी कि फेल और नहनु फाइल के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया होकर सिलातुल मौसूल बन गया, माँ इसमें मौसूल का। माँ इसमें मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर ये मातूफ बन गया, माँ नुक्फी मातूफ अलैह का। और माँ नुक्फी मातूफ अलैह अपने जो है वो अम, अम, मा नुख्फी मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर ये दालमु फील का यहाँ पर फाइल बन जाएगा, ठीक है, तो सॉरी मफूल बन जाएगा। तो तालमु फेल अंता फाइल और मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर ये इन्ना की खबर बन जाएगा। इन्ना का इसम काजमीर की फॉर्म में था, और इन्ना की खबर जो है वो तालमु से शुरू होकर नोलिनु तक गई, यहाँ तक, ठीक है। अब ये जुड़ी कैसे है ये आप सबको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। वाओ आगे हमारे पास हालिया नजर आ रहा है, माँ जो है वो नाफिया है। यु यखफा, यखफा खाफा या हरूफ मादा बाब सीन से है, और ये फेल बा फाइल है, फेल मुतारे है, वाहिद है, वाहिद है और मुजक्कर है, और गायब का सीगा है क्योंकि या लगी हुई ये भी बता रही है। तो हुआ फाइल, और अला हरफ जर है, अल्लाह ही मजरूर इसम है, जार मजरूर मुतालिक हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर हम देख लें खाफा या हरूफ मादा, खाफा हरूफ मादा आप देख सकते हैं कि नुक्फी और यखफा दोनों के हरूफ मादा सेम है, लेकिन बाब का फर्क है, ये बाब इफाल से है और ये बाब सीन से है। बाब इफाल जो है वो उसमें लाजिम का माना नहीं बल्कि मुताद्दी का माना आता है। लाजिम वो फेल होता है जो फेल व फाइल होने से जुमला मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ पर आप तर्जुमे पे जरा गौर करेंगे तो नुख्फी, हमको अगर आप छोड़ दें तो हम छुपाते हैं, ठीक है, किसी चीज को छुपाना, बाबे फाल से आएगा खाफा या हरूफ मदा, तो किसी चीज को छुपाना, ठीक है, और खाफा या हरूफ मदा बाब सीन से आएगा तो मतलब होगा कि कोई चीज खुद ब खुद छुप जाना, ठीक है। एक होता है किसी को छुपाना और एक होता है खुद छुपी हुई, खुद छुप जाना, ठीक है, खुद ही छुप जाना। तो यहाँ पर बाप के फर्क से माना में काफी फर्क आ जाता है कि एक चीज जिस कोई छुपाने वाला हो वो बाबे इफाल से आएगी, और एक चीज खुद ब खुद छुप जाती है, उसको किसी मफूल की जरूरत नहीं होती, तो वो बाप सीन से आएगी, ठीक है। अला हरफे जर अल्लाह मजरूर इसम मुरक्कबे जारी होकर मुतालिक फेल हो जाएगा। मिन हरफे जारा है, शै इन नकिरा इसम है, हमने पढ़ा था कि जब भी मिन हरफे जारा के बाद कोई नकिरा इसम आएगा तो वो मिन जायदा होगा, जो कि तरमीम को तरकीब में कुछ नहीं बनाएंगे। आगे जो शई इन है इसको हम देखेंगे कि ये क्या बन सकता है। तो शई इन जो है ये महल्लन हमें मजरूर नजर आ रहा है, लेकिन ये चूंकि फेल मुजारे का पहला सीगा इस्तेमाल हो, पहला और चौथा सीगा हो, तो फाइल जाहिर हो सकता है। तो शई इन जो है महल्लन मरफू लफ्जन मजरूर नजर आ रहा है, और ये फाइल बनेगा यानी कि छुपी हुई कोई चीज, छुपी हुई कोई चीज खुद ही छुपी हुई, ठीक है। तो अभी ये खुद ही का तर्जुमा मैं इसलिए कर रही हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि बाब सीन से आएगा तो वो चीज खुद ब खुद छुप जाती है, हाइड हो जाती है, जबकि बाब इफाल से आएगा तो कोई छुपाएगा उसको।
तो फी हरफ जर है, अल अर्दी मजरूर इसम है, नकिरा इसम के बाद जार मजरूर आ जाए तो वो उसकी सिफत बनता है। तो शैइन यहाँ पर मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर ये जो है वो यख्फा फेल का फाइल बन जाएगा। तो मिन चूंकि जायदा है, इसको तरकीब में कोई जगह नहीं देंगे, तो यख्फा फेल अला अल्लाही मुतालिक और शैइन फिल अर्दी, ये हमारे पास फाइल हो जाएगा। क्योंकि अभी वाव आतिफा भी हमें नजर आ रहा है, तो फिल अर्दी जो है वो इसको हम अभी मातूफ अलैह कह लेते हैं। ला हरफे नाफिया गेन आ गया उसी उस पे। और आगे देखिए हमारे पास आ रहा है फिस समाई। तो फिस समाई फी हरफे जर है, अस्समाई मजरूर इसम है। तो यहाँ पर ये देखें कि जार मजरूर ये मातूफ हो गए फिल अर्दी के ऊपर। तो फिल अर्दी मातूफ अपने मातूफ अलैह के साथ मिलकर ये सिफत बन गया शैइन की। और शैइन अपनी सिफत के साथ मिलकर यख्फा फेल का फाइल हो गया। अल्लाह मुतालिक, और यख्फा फेल बा फाइल और अल्लाह मुतालिक, यानी कि यख्फा फेल शैइन फिल अर्दी वला फिस समाई, ये फाइल अल्लाह मुतालिक, ये जुमला फेलिया होकर ये हमारे पास नाफिया जुमला होकर ये हालिया जुमला बन गया, क्योंकि वाव को हमने हालिया डिक्लेयर किया था। और यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या दुआ मांग रहे हैं? ए हमारे रब, बेशक आप जानते हैं जो हम छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना तआला की बड़ाई बयान कर रहे हैं कि हम जो भी कुछ हमारे दिलों में है या जो कुछ हम छुपाते हैं, आप सबसे वाकिफ हैं। अगर हम कुछ बताते हैं आपको, उससे भी वाकिफ हैं, और अगर हम आपसे कुछ छुपाते हैं तो उससे भी वाकिफ हैं। मतलब ये है कि मेरी दुआ के मकसद को आप बखूबी जानते हैं, यानी कि मैं किस मकसद के लिए दुआ मांग रहा हूँ आप बखूबी जानते हैं, मैं चाहे आपको बताऊं या ना बताऊं। क्योंकि आगे जो बात थी वह माँ यख्फा अलल्लाहि मिन शैई, कि कोई भी चीज अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं है जमीन में और ना ही आसमान में। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगकर अल्लाह ताला की एक तो बड़ाई बयान की कि अल्लाह ताला हर चीज को बखूबी जानते हैं। और दूसरे नंबर पर ये जो दुआ का ये अंदाज है कि मेरी दुआ के मकसद को भी आप जानते हैं। एक तो ये जानते हैं ना कि मैं दुआ मांग रहा हूँ, तो क्यों, तो ये भी आप जानते हैं कि क्यों मांग रहा हूँ। इस शहर के लिए दुआ से असल मकसद तेरी रजा है, यानी कि ये जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि इस शहर को अमन वाला बना दे, और जो है वो बाकी जितनी भी दुआएं हम ऊपर एनालाइज करके आए हैं, तो असल मकसद अल्लाह सुब्हाना तआला की रज़ा थी। तो हर चीज की हकीकत को खूब खूब जानते हैं अल्लाह सुब्हाना तआला। आसमान और जमीन की कोई भी चीज अल्लाह तआला से पोशीदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला ही है जो हर चीज को जानने वाले हैं। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि अल्लाह ताला ने बनाया इंसान को, तो क्या बनाने वाला ही नहीं जानता कि वो उसकी नेचर कैसी है, या वो क्या जो है वो कर रहा है या क्या करना चाहता है, लाइक ये सारी चीजें। तो अल्लाह ताला हमारे सीनों के राज भी जानते हैं, अल्लाह ताला हमारे मुंह पर आई हुई बात भी जानते हैं, अल्लाह ताला हमारी नियतों तक से वाकिफ है। हम कोई बात अपनी जुबान पर लाते हैं या नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज से वाकिफ है। जो कुछ जमीन में है, अब जमीन में सिर्फ इंसान ही नहीं है, और बहुत सारी मखलूकात और बहुत सारी और चीजें, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर हर चीज से वाकिफ है। जो कुछ जमीन में है और जो कुछ आसमान में है उससे भी। और मिन जायदा का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये नकीरा को मजीद नकीरा करने के लिए लाता है। नकीरा की कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी कि नकीरा के अंदर ज्यादा चीजें आती हैं। अगर इसका नकीरा का दायरा देखें तो ये वसी होता है मारिफा के दायरा से। तो यानी कि जो हम कह रहे हैं ना कि कोई भी चीज, तो ये मिन जायदा की वजह से हम ये बात करें कि कोई भी चीज जमीन में और ना आसमान में,
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ایک ذرہ تک بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگ رہے تھے، ان کا یہ انداز تھا کہ یہ دعا کیوں میں مانگ رہا ہوں، آپ میرے مقصد سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہم سب کے دلوں سے واقف ہیں، ہماری نیتوں سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص کر لے دین کے لیے، اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی خالص کر دے، ہمارے اعمال کو ہمارے دین اسلام کے مطابق کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا بنا دے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔